A very warm welcome to all the guests, dignitaries, deans, and all the students on the occasion of Akhil Jyot. स्वागत है आप सभी का आज इस गेस्ट लेक्चर के प्रोग्राम में जिसका टॉपिक है रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज इन शेपिंग जनरेशंस। और इस टॉपिक पर बहुत अच्छी मोटिवेशनल टॉक्स एंड स्पीचेस एंड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज देने के लिए आपको आज यहाँ पर बहुत सारे एस्टीम्ड गेस्ट्स इस ऑडिटोरियम में मौजूद हैं जो कि आप तक अपनी बातें, अपने थॉट्स को पहुँचाएंगे। We have with us Dr. Hira Lal sir, an IAS officer. Can we have a big round of applause? Then we have Mr. Nitin Sharma sir, along with Mr. Ashok Kumar Avasthi sir, and last but not the least, Mr. Shaurya Srivastav sir. सभी के लिए जोरदार तालियां। और स्टार्ट करते हैं अपने इस स्पेशल टॉक्स के, इस मोटिवेशनल टॉक के सेशन को। Now I would request respected Sushil sir to please present a bouquet to respected Hira Lal sir. Can we have a big round of applause? Thank you. Now I would like to request Dr. Apurv Anand sir to please present the bouquet to our next esteemed guest, Mr. Nitin Sharma sir. I would request respected Apurv Anand sir to please present a bouquet to respected Mr. Nitin Sharma sir. I would like to request Dr. Sudhir Kumar sir to please present a bouquet to our next esteemed guest, Mr. Ashok Kumar Avasthi sir. जोरदार तालियां एक बार please. And last but not the least, I would request Dr. Pooja Bhatia ma'am to please present a bouquet to Mr. Shaurya Srivastav sir. Thank you ma'am, thank you sir. Proceeding with the event, Dr. Hira Lal sir, an IAS officer from UP Cadre who is currently Additional Mission Director from National Health Mission, Uttar Pradesh. Along with that, Additional Project Director, Uttar Pradesh State AIDS Control Society. Dr. Lal is having an outstanding record for successfully running the administration in different positions and locations, not just by normal tactics, but by using IT-enabled services, thus providing good governance to the public. और आज हमारे बीच ऐसे ही कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर हीरा लाल जी के बारे में आगे बताते हैं। He was born and lived in deep rural areas and farming environment. He has special connect with rural community. And he has also completed his PhD in role of ICT in achieving good governance. और आज इस motivational talk पे जिसका topic है Shaping Generations, role of universities in shaping generations. And Amber, actually the universities have a very, very important role in developing the personality of a person, of a student. Exactly. And overall development की जब हम बात करते हैं, personality enhancement की जब बात करते हैं, तो ऐसे speakers की, ऐसे motivational guest lecturers की इशांक हमें ज़रूरत होती है कि वो अपने experiences और thoughts को हमारे साथ share करें. I still remember BBD की एक tagline हुआ करती थी, Shaping Generations. तो इसी प्रथा को आगे बढ़ाते हैं, and I would like to invite on the stage respected Dr. Hira Lal sir to please come up और हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करें. Sir, can we have you on the stage? A very warm welcome, sir.
सभी को मेरा नमस्कार। इससे पहले कि मैं अपनी बात को शुरू करूं, मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं। और आज हम लोग, अभी मैं बाहर जब आया तो मैं पांडे जी से बात कर रहा था, आज हम लोग एक स्पेशल ओकेजन पे इकट्ठा हुए हैं यहाँ, और एक अच्छे इंसान के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनकी याद में अच्छा काम करने के लिए, उनसे प्रेरणा लेने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जैसा कि मुझे बताया कि आपकी बड़ी सोशल काम में रुचि थी, तो हम सभी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। देखिए, 15 मिनट में हम लोगों को बात करनी है, तो बहुत टू द पॉइंटेड बात करनी है। और मैं टॉपिक है इंडिया एज ए ग्लोबल पावर हाउस एंड द रोल ऑफ एजुकेशन, इस पर मैं बात करूंगा। तो इसके पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। इजाज़त है आप लोगों की? आवाज़ हल्की आ रही है। नाश्ता करके नहीं आए हो क्या? कुछ लोग कह रहे हैं नो सर। तो जब नाश्ता करके नहीं आए तो मेरी बात क्या सुनोगे? चलिए, मैं आपको बात से नाश्ता करा दूंगा, चिंता मत करिए। यही तो एक आईएएस अफसर और आप में डिफरेंस है, अदरवाइज क्या आईएएस का मतलब है भाई? तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि आप लोगों में से, सुनिए ध्यान से, मैं अमिताभ बच्चन की स्टाइल में आपसे बात कर रहा हूं। वो कहते हैं ना कि मेरा पहला क्वेश्चन आ रहा है, तो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है कि आप में से कितने लोग बेरोजगार रहना चाहते हैं यहां से पढ़ाई करने के बाद? हाथ उठाइए। नहीं रहना चाहते, किसी ने हाथ नहीं उठाया। सही बात है, नहीं रहना चाहिए, पढ़ने के बाद कोई बेरोजगार नहीं रहना चाहता। दूसरा मेरा क्वेश्चन, देखिए, मैं आपको उलझा रहा हूं, फंसा रहा हूं और पटा रहा हूं। और जब तक आप पटेंगे नहीं, तब तक मेरी बात सुनेंगे नहीं, और जब तक मेरी बात सुनेंगे नहीं तो मैं लेक्चर क्या देने आया हूं, क्या खाक करने आया हूं? तो मेरा दूसरा क्वेश्चन जो है आपके सामने, वो ये है कि अगर आपको बेरोजगार नहीं रहना है, अच्छा काम करना है, ऊंचाई पे जाना है, तो आपका ये मिशन कौन पूरा करेगा? इसके 3 ऑप्शन हैं, उसमें आपको बताना है ऑप्शन कौन सा सही है। पहला ऑप्शन, आप स्वयं। अगर आपको बेरोजगार नहीं रहना है तो आप इसके लिए स्वयं जिम्मेदार हैं और आप स्वयं कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। पहला ऑप्शन। दूसरा, आपके माता पिता आपके लिए रोजगार बना करके देंगे। तीसरा ऑप्शन, सरकार या कोई अन्य एजेंसी बना के दे देगी। बताइए कौन ऑप्शन सही है? पहले ऑप्शन पे हाथ उठाइए, कितने लोग सहमत हैं? ठीक, सही आंसर पहला है। देखिए, अगर आप गरीब हैं तो आप गरीब रहना चाहते हैं, ये मेरा सेंटेंस याद रखिए। अगर आप धनी हैं तो आप धनी होना चाहते हैं, इसलिए धनी हैं। यही सत्य वाक्य है। जिसके लोगों के समझ में आ जाता है वो धनी हो जाता, जिसके समझ में नहीं आता वो गरीब रहता है। ठीक। अभी मैं झारखंड में ऑब्जर्वर होके गया था, रामगढ़ जिले में। तो आईआईएम के डायरेक्टर हैं, यही जालौन के हैं, दीपक श्रीवास्तव जी, बड़े अच्छे इंसान हैं, बिल्कुल देहाती टाइप के आदमी हमारी तरह। हम भी देहाती हैं। देखो फोटो में देहाती लग रहा हूं, नहीं लग रहा हूं? देखो, मैं टाई वही बांधे हूं, लेकिन हूं देहाती और लग भी रहा हूं। आप लोग सहमत हैं या नहीं हैं? अरे मुझे देहाती बोल रहे, दिमाग खराब है आपका?
एनीवे, तो मैं वहां जब गया तो उन्होंने कहा मेरे आईआईएम के बच्चों को आकर के लेक्चर ले लीजिए। अब मैं बड़े धर्म संकट में पड़ा कि आईआईएम के बच्चे इतने बुद्धिमान, इतने तेज, मैं इनका क्या लेक्चर ले लूं। तो मैं गया उनके ऑडिटोरियम में ऐसे। तो देखिए, जब तक आप हटके नहीं बोलेंगे, हटके नहीं बताएंगे, लकीर के फकीर रहेंगे, तो आपके अपने घर में औकात नहीं, आपके बाल बच्चे, आपकी पत्नी भी आपको औकात नहीं देती है। तो जानते हैं मेरा टॉपिक क्या था? मेरा टॉपिक था क्या एक कॉमर्शियल मैनेजर को सोशल मैनेजमेंट के टेक्निक्स और ट्रिक्स, जो कि हमारी एक्सपर्टीज है, जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए। जब मैं गया हाल में तो मैंने कहा आप लोग कॉमर्शियल मैनेजर हैं, क्या आपको सोशल मैनेजमेंट की ट्रिक्स, टेक्निक्स, मैनेजमेंट जो कि हम करते हैं, आईएएस अफसर करता है, आपको जानना चाहिए या नहीं? तो सारे बच्चों ने कह दिया नहीं जानना चाहिए, दोनों हाथ उठा दिए। और लास्ट में मैंने ये बता दिया, उनसे कहलवा लिया कि सबसे पहले आपको सोशल मैनेजमेंट का ट्रिक्स और टेक्निक्स जानना चाहिए, उसके बाद कमर्शियल मैनेजमेंट का टेक्निक जानना चाहिए। और सब लोग कहे आप सही हैं और हम सब गलत हैं। कभी अगर दाव मिलेगा तो आपको भी लेक्चर लेके समझाऊंगा। एनीवे, तो हम लोग चलते हैं बैक टू कनेक्ट। क्या हम लोग कह रहे थे कि कोई बेरोजगार नहीं रहना चाहता है, रोजगार सब चाहते हैं, एक बात। और उसके लिए ये प्रयास किसे करना पड़ेगा? आपको। मैं गांव का आदमी, देहाती, बहुत बड़ा देहाती, प्राइमरी स्कूल का पढ़ा, बोरा लेके जाने वाला, आज आईएएस अफसर हूं। देखो कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं, कोई नहीं बोल सकता। ये कॉन्फिडेंस किताब में नहीं मिलती है, धूप में बाल पकाने पड़ते हैं तब आता है। और सब जो पकाएगा वही पाएगा, ये मिलेगा नहीं, पिताजी नहीं दे देंगे, नहीं ये गुरुजी दे देंगे, ये मिलता है, जलना पड़ता है। ठीक, तो देखिए हम लोग कहां पे थे, रास्ता। मैं आप लोगों को 1 घंटा भी हंसाता, लेकिन 15 मिनट है तो मैं उसी में हूं। मैं इसीलिए लिख के लाया, मैं लिख के बोलता नहीं हूं, ये मजबूर कर दिया कि लिख के लाऊं मैं। तो आपको बेरोजगार नहीं रहना है, आपको बेरोजगार नहीं रहना है। और अगर बेरोजगार नहीं रहना है तो प्रयास किसको करना है? आपको करना है। ये बातें हो गई। अब आगे आइए। तो अगर आपको बेरोजगार नहीं रहना है और प्रयास आपको करना है, तो वो साधन क्या है, कैसे मिलेगा, कौन करेगा? वो साधन क्या है? पैसे से मिलेगा, पावर से मिलेगा, कैसे मिलेगा? एजुकेशन से मिलेगा, पढ़ाई से मिलेगा, बहुत सारे साधन हैं। लेकिन इसमें जो सबसे सस्ता, सबसे सरल, सबसे आसान और जो समय से रिजल्ट देने वाला है वो है एजुकेशन। क्या है? नॉलेज। वो कहां मिलता है? बीबीडी में मिलता है। कहां मिलता है? क्यों यहां पे नॉलेज नहीं मिलता? क्या हंस रहे हो सब? बेवकूफ है आप लोग क्या? हमने कह दिया बीबीडी में मिलता तो हंस रहे हैं जैसे मैंने कोई गलत बात कह दी। अरे भाई, ये नॉलेज की भूमि है, ये नॉलेज का गढ़ है, ये नॉलेज की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो क्यों मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? रीजन बीइंग एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रेस। क्या मैंने क्या बोला? एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ। इसलिए दूसरा मेरा क्या तर्क है? एजुकेशन क्रिएट्स स्किल्ड वर्कफोर्स। क्या करता है? स्किल्ड वर्कफोर्स क्रिएट करता है। तीसरा, एजुकेशन लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। पैसा कमवाता है, लक्ष्मी लाता है। जिसको आप खर्च करते हैं तब मजा लेते हैं, पैसा ना हो तो मजा आएगा? नहीं आएगा। एंड एजुकेशन प्रमोट सोशल इक्वलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी। कुछ लोगों के पास पैसा हो, बकिया सब भिखारी रहे, समाज नहीं अच्छा कहलाता। एंड लास्टली माय थर्ड पार्ट इज एजुकेशन बिल्ड्स ए बेटर फ्यूचर। अगर आदमी एजुकेशन है तो उसका प्रेजेंट ही ठीक नहीं होता, उसका भविष्य भी ठीक होता है। These are the qualities. There are many other qualities associated with the education, but I have mentioned only 5 qualities of education. तो हमारे पास बेरोजगार ना रहने का जो साधन है वो क्या है? एजुकेशन। मैं आप
ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? मैं 2009-10 में एक साल अमेरिका में था। कहाँ था? तो क्या मैं घास छोड़ने गया था? क्या करने गया था? पढ़ने गया था। क्या करने गया था? पढ़ने गया था। और आज हमारी आपकी एक रिश्तेदारी है। क्या है? हम आप यहां जितने हाल में बैठे हैं, हम आप एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। बताएंगे कैसे? आपकी जाति क्या है? आपकी जाति ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, कुर्मी, यादव कुछ नहीं। आपकी जाति स्टूडेंट है। क्या है? और मेरी भी जाति स्टूडेंट है। मैं आज के डेट में मैं स्टूडेंट हूं अयोध्या यूनिवर्सिटी का, डीलिट का, पीएचडी के बाद का। मैं आज भी पढ़ रहा हूं। मैं जिंदगी भर मरते दम तक पढ़ाई का पीछा नहीं छोड़ूंगा। ठीक? तो हम आप यहाँ एक रिश्तेदार के रूप में बैठे हैं। मैंने पीएचडी कंप्लीट की एकेटीयू से और इस समय मैंने डीलिट कर रहा हूँ एकेटीयू से। तो मैं जब 2009-10 में वहाँ मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करने गया तो मैंने देखा कि ये अमेरिका इतना आगे क्यों है, इसकी तूती क्यों बोलती है। इसलिए कि एजुकेशन उनका माई बाप दादा परदादा सब कुछ है, वो रीढ़ है। एजुकेशन इंडस्ट्री अमेरिका का ब्रांड है और नॉलेज इज पावर। उनके पास नॉलेज का पावर हाउस है, इसलिए वो शक्तिशाली हैं और दुनिया पे कहते हैं हम पावर हाउस हैं। एक एग्जाम्पल, मैं साउथ कोरिया गया ट्रेनिंग करने। तो साउथ कोरिया गया तो वहां भी बहुत अच्छा मामला बढ़ा। तो मैंने रिसर्च किया तो पता लगा कि 1945 में साउथ कोरिया हमारी तरह, हम 47 और 45, वो 45 हम 47 में दोनों लोग आजाद हुए। और कोरिया तो देखा तो मतलब फिर मैं घुसा, हमने कहा ये क्या कमाल कर दिए भाई, इनकी नाक टेढ़ी, थोड़ा मुंह भी टेढ़ा, हम तो अच्छे ये कैसे आगे निकल गए। तो यहां बताया गया कि आजादी के बाद 10 साल, पहला साल उन्होंने हेल्थ पे लगाया, सबको शारीरिक रूप से मजबूत कर दिया। 10 साल 1945 से 10 साल कितना हो गया? 55 तक 10 साल उन्होंने हेल्थ पे लगा के सबको मजबूत कर दिया, हेल्थ के रूप में मजबूत कर दिया। अगला 10 साल 55 से 10 साल 65 में उन्होंने सबको पढ़ा के विद्वान बना दिया। जैसे देश का हेल्थ और दिल और मतलब शरीर और दिमाग मजबूत हो गया, साउथ कोरिया देखने लायक है, जाने का मौका मिलेगा। तो मैंने ये जो 2 कंट्री विजिट की, मैंने जो तो इसका मतलब एजुकेशन में ये जान है, एजुकेशन में ये ताकत है। जो आप लोग आए हो, पढ़ते हो, मोबाइल देखते हो, अम्मा पापा से झूठ बोल के मजाक बनाते हो, उसके पैसे बर्बाद करते हो, मत करना। एजुकेशन में वो ताकत है, इस ताकत को एक्वायर करो। ठीक है कि नहीं? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। हमारे पढ़ाई में क्या दिक्कत है? क्यों हम लोग जो है पढ़ाई में दिक्कत? हमारी क्वालिटी खराब है और इसमें कुछ सिस्टमेटिक दिक्कतें हैं। क्या? हम लोग जब थियरी पढ़ेंगे तो थियरी पढ़ेंगे, जो प्रैक्टिकल पढ़ेंगे तो प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। कंप्यूटर साइंस करके बीटेक करके निकल के गया 95%, और जब वो कंप्यूटर के सामने बैठा तो उसको कपी आ रही है देख करके। क्या? हम जब थियरी पढ़ते हैं तो थियरी पढ़ते, प्रैक्टिकल पढ़ते तो प्रैक्टिकल पढ़ते। तो जब हम पढ़ के 95 लेके जाते हैं तो इरिलेवेंट हो जाते हैं फील्ड में। यही सही बात है कि नहीं? सही बात है। आप मैकेनिकल से बीटेक करके जाइए, स्कूटर के सामने खड़े होइए, आपको कुछ नहीं, आप रोने लगेंगे। और ये चचा लुंगी में बैठा हुआ, टेढ़ा मेढ़ा चेहरा वाला, स्कूटर को एक किक मारेगा और 2 मिनट के अंदर ठीक करके दे देगा बाय प्रैक्टिस। वो पढ़ा पीएचडी नहीं, वो कढ़ा पीएचडी है, प्रैक्टिशनर पीएचडी है। तो हमारे यहां नई एजुकेशन पॉलिसी में इसका करेक्शन किया गया कि पढ़ाई और कढ़ाई दोनों एक साथ होगी। कढ़ाई मतलब समझ रहे हो ना, प्रैक्टिशनर। पढ़ाई मतलब पढ़ाई जो यहां कर रहे हो, और कढ़ाई का मतलब प्रैक्टिस करना उसका। ठीक? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसका करेक्शन किया गया और इसको लेकर के हम लोगों को कि भाई प्रैक्टिस भी करिए। पहले वो एक इंटर्नशिप 2 महीना के लिए कराते थे गर्मी में, हमने भी किया है बीटेक में। क्या? तो गए, चाय पानी पिए, मौज मस्ती किए, कुछ अपना
ऐसे इधर उधर बेवकूफ वकूफ बना करके डिग्री ले लिया। अरे वो बेवकूफ आप किसी को नहीं बना रहे थे, अपने आप को बना रहे थे। जब डिग्री लेके निकलोगे ना तो हाथ खाली रहेगा। तो मैं आपसे एक बात कहने आया हूं और मेरा यही सार है। मैं अभी बाहर बात कर रहा था आप लोगों से, पहले जब जिंदगी थी तो ये पढ़ाई आप डॉक्टर हो गए पूरी जिंदगी कट जाएगी, आपने इंजीनियरिंग कर लिया तो आपकी जिंदगी कट जाएगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैं रिसर्च पेपर पढ़ रहा था किसी बड़े यूनिवर्सिटी का, उसमें यह लिखा था कि अगर अब आपको जिंदगी को चलाना है, पूरी जिंदगी 80 साल की, पहले तो 60 साल में चले जाते थे, अब तो 80 साल घुरज घुरज के रहना ही है, इतनी अच्छी हो गई है मामला। अब अच्छी बात है तो क्या कम से कम 3 डोमेन का एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप इंजीनियर भी बनिए, तो आप कुछ अपना सोशल मीडिया भी करिए, कुछ नाचिए, कुछ गाइए, कुछ आबा काबा करते रहिए। 3 डोमेन का नॉलेज चाहिए, तब आपकी जिंदगी सफल हो। तो ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं स्टूडेंट हूं और नौकरी मिल जाएगी और मैं तो बबुआ बन जाऊंगा और ये हो जाऊंगा, तो आप गलतफहमी में है। पढ़ने के बाद आप भी पछताएंगे, वो आपके घर वाले भी पछताएंगे और समाज पे आप बोझ बनेंगे। मेरी बात बुरी लग रही सबको ना? कितने लोगों को बुरी लग रही? जरा हाथ उठाओ। मेरी बात अच्छा आपको बुरी लग रही है? काहे बुरी लग रही भैया? मैं तो सही बात बोल रहा हूं, कड़वा जरूर है। हाँ अच्छा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हैं तो नहीं बोलना चाहिए, गोल मोल बोलूं, झूठ बोलूं? एनीवे, तो देखिए अब आपको पढ़ाई से काम नहीं चलने वाला है। एक स्टूडेंट को कम से कम 2 डोमेन पे काम करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? आप पढ़ाई के साथ कढ़ाई करो। क्या कढ़ाई करो और कैसे करो? देखिए, सबके पास ये मोबाइल फोन है कि नहीं है? सब लोग अपने हाथ में निकालिए, दिखाइए, निकालिए। सबके पास इसमें इंटरनेट है कि नहीं है? है। इसमें एक वर्ड डालिए, डायनेमिक डीएम, गूगल में डालिए। इसमें देखिए एक किताब मिलेगी आपको डायनेमिक डीएम के नाम से, देखिए है कि नहीं है? डायनेमिक डीएम। मैं ये प्रैक्टिकल क्यों करा रहा हूं बता रहा हूं। देखिए मैं ही दिख रहा हूंगा, दिखा कि नहीं दिखा? है? दिखा कि नहीं दिखा? मैं ही हूं कि नहीं हूं? अगर ये किताब खरीद के आपको पढ़ना हो तो अभी आप बुक करिए, कल तक ये डिलीवरी हो जाएगी। अब आप रुकिए, आप समझ गए मेरे ऊपर क्यों हंस रहे हैं? मैं समझ गया हूं। आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपने किताब का प्रचार कर रहा हूं। आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी किताब आपको खरीदवा रहा हूं। आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपको अपने बहुत बड़ा बन रहा हूं, सेखी बघार रहा हूं। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। मैं आपकी आंखें खोलना चाह रहा हूं इस उदाहरण से। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि आज के डेट में दुनिया मुट्ठी में है। क्या है? अगर आपके पास ये मोबाइल फोन है और इसमें इंटरनेट है तो आप आइए टॉपिक पे। मैंने ये जो उदाहरण दिया इसके पीछे मेरी एक मंशा थी कि आप आज के डेट में कुछ भी करना चाहो कर सकते हो, केवल आपके पास एक मोबाइल हो और एक उसमें नेट लगा हो। तो करना क्या है? हर आदमी की एक जो है उसके अंदर एक छिपी हुई रुचि है, पैशन है। आप अपने उस पैशन को पहचानो। खेलने में, बजाने में, नाचने में, गाने में, हल्ला करने में, चिल्लाने में, जो भी आपको अच्छा लगे। आज के डेट में कोई चीज बुरा नहीं है। अगर आप चिल्लाओ, उसमें कुछ हंसाने वाला चिल्लाओ, आप हीरो बन जाएंगे। कपिल शर्मा क्या करते हैं? कुछ दाएं बाएं यही चिल्लाते उल्लाते तो हैं, हंसा देते हैं, हीरो हैं। आज के डेट में कोई कला, कोई एक्शन, कोई एक्टिविटी बुरी नहीं है। उसको आपको उसमें क्रिएटिविटी डालनी है। तो मेरा आपके से सभी लोगों से ये कहना है, यही आपका क्रक्स है कि जो आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके अंदर अगर गाने की कला है, बजाने की कला है, राइटिंग की कला है, तो इस गूगल पे ढूंढो, आपको उसके बहुत सारे
टिप मिलेंगे, ट्रिक मिलेंगे, वीडियो मिलेंगे, और उससे आपके अंदर जो छुपी हुई आपकी रुचि है, पैशन है, उसको बढ़ाइए और उसको रोजगार में कन्वर्ट करिए। और जब तक आप यहां से निकल के जाइए, ठीक है, तो क्या होगा, आपके पास डिग्री होगी, उससे आपको नौकरी मिलेगी पब्लिक या प्राइवेट में, और इस पैशन से भी आप पैसा कमा सकते हैं। आपके अंदर इतनी ऊर्जा देती है अपनी रुचि वाली क्या पैशन। मैं आपको उदाहरण में गांव में था, तो हमारे गांव में एक सागर थे, उनको ये पेंटिंग करना, वो किसी को हमारा देख के हम ही को बना देता था, इसे खड़ा होकर देखा, बना दिया मुझे, और कहे देखो आप ही हैं, इसे खड़े खड़े। बाद में वो इंटर तक पढ़ा, गरीब था, और बाद में उसकी रुचि थी तो उसने ये फोटोग्राफी की दुकान खोल लिया, उससे उसका जीवन चल रहा। उसका साथ इंटर तक की पढ़ाई ने नहीं दिया, उसका साथ उसके पैशन ने दिया, उसकी रुचि ने दिया। यही बात मैं बताना चाह रहा हूं, और यहीं से मैंने शुरू किया था कि कोई आदमी को मैं बेरोजगार नहीं रहने दूंगा यहां के जाने के बाद। मेरी क्या आदत है, मेरी पढ़ने की आदत है, स्पीकिंग की आदत है, लोगों को इंस्पायर करने की आदत है, मोटिवेट करने की आदत है। ये लगाए थे मोटिवेशनल स्पीकर, मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, मैं इंस्पायरेशनल स्पीकर हूं। इंस्पायर करता हूं, जगाता हूं, दौड़ाता हूं, पटाता हूं। आज के बाद से आप लोग अपने अंदर जो पैशन है, रुचि है, उसको परसू करोगे कि नहीं करोगे? उससे आपको ऊर्जा मिलेगी, और आप जब यहां से निकल के जाओगे तो आपको वो रोजगार देगा। मैंने सागर का उदाहरण दिया, ऐसे मेरे पास अनेकों उदाहरण हैं। आप वीडियो देखिए, कितनी छोटी छोटी इतनी बच्चियां 4-4 लाख रुपया कमा रही है। कमा रही कि नहीं कमा रही हैं? यूट्यूब दे रहा है, फेसबुक दे रहा है, और ये स्कूल वाले लेक्चर में बुलाते हैं तो नोट देते हैं। ये बुलाते हैं, पैसा देते हैं। सारे स्पीकर हमारी तरह फ्री में थोड़ी आते हैं। मैं आप लोगों का पेड स्पीकर के रूप में देखना चाहता हूं। आपके अंदर वो क्षमता, वो कला होनी चाहिए। तो बात ठीक है कि नहीं ठीक है? आज के बाद से केवल पढ़ाई नहीं करोगे, कढ़ाई करोगे या नहीं करोगे? एक और उदाहरण देता हूं। यही थोड़ी से आगे बाराबंकी के पास जाओगे तो एक दौलतपुर गांव है, उस गांव का नाम है दौलतपुर। वहां एक रामशरण वर्मा नाम के किसान हैं। डाल दो अपनी गूगल में, देखो। और उनको कहते हैं बनाना मैन, और बहुत सारे मुख्यमंत्री और बहुत सारे लोग उनके यहां जाते हैं, उनको कहते हैं खेती का जादूगर। कक्षा 8 फेल है वो आदमी। क्या है? कक्षा 8 फेल है। और उसके यहां खेती के बारे में पीएचडी, एमबीए करने वाले, आईआईएम के एग्री बिजनेस करने वाले, वो कक्षा 8 से पढ़ने जाते हैं। वो पढ़ा पीएचडी नहीं है, वो कढ़ा पीएचडी है। कौन पढ़ा? प्रैक्टिशनर पीएचडी है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमारे यहाँ ये कागज वाले डिग्री की तो वैल्यू है, लेकिन जो करके दिखाए उसकी वैल्यू नहीं है। अब इस दिशा में भी सोच बनी है, और लोग अब इस दिशा में काम हो रहा है। डीन, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन इस पर एक प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। मैंने ऑनलाइन, उनको पद्मश्री मिला है, श्रीकांत दत्तकर नाम है। इस पर ये प्रोग्राम बना रहे हैं कि ये कागज वाली डिग्री का तो वैल्यू दो ही, और जो कढ़ा पीएचडी है उसका भी वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि हम मरते दम तक सीखते हैं। तो दोस्तों, अब मैं अपनी बात को समाप्त करूं। आप लोगों को तो बोरियत नहीं हो रही है? मैं चाट तो नहीं रहा हूं आप लोगों को? तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, क्या करते हैं, और समझते नहीं हैं। तो समझना जरूरी है या पढ़ना जरूरी है? हाँ, हम फेल कहां होते हैं? हम पढ़ते हैं और पिताजी को दिखाते हैं, देखो पिताजी हम पढ़ रहे हैं। पिताजी खुश हो रहा, बेटा पढ़ रहा हो, और बेटा तो पढ़ रहा है, दिमाग ससुरे का लगा है, बीबीडी के गेट पर गन्ना का जूस पी रहा है। इसीलिए फेल होते हैं। तो पढ़ना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी। जब समझोगे तो दिमाग में जाएगा तो काम करेगा। तो मेरा ये कहना है कि आप समझने की कोशिश करिए। और मैंने आपको एक मंत्र दिया, अब पढ़ा पीएचडी तो ये बीबीडी वाले डिग्री देंगे, और कढ़ा पीएचडी आपको ये कौन देगा? गूगल बाबा देगा। और आपके अंदर जो पैशन है, ठीक है, आपके अंदर जो पैशन है खेलने, आप क्रिकेट खेल रहे हो तो उसी को
मारो कि छक्का 12 गेंद वाला, क्या 12 रन हो जाए, लाओ नई चीज को। तो आप अगर अपने पैशन को गूगल के माध्यम से शार्प करोगे, आगे ले जाओगे, तो आपको रोजगार देगा और आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। तो मुझे लगता है मैं आप अंत में, आपने मेरी किताब तो ये देख ली है कि नहीं देख ली है? तो आप लोग पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? अब तो आप लोग हमसे पट गए हैं, तो अब तो पट गए हैं तो पढ़ लीजिए, दोनों पासे है, पटाया और पढ़ाया। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, ये मेरी किताब, इस देश में 3 ही आदमी हैं जो बढ़िया, जिसका जलवा है, जिसका नाम है पीएम, सीएम और इस किताब का नाम क्या है? डायनेमिक डीएम। तो आपने डीएम सुना होगा, उसमें डायनेमिक डीएम मिल जाए तो मामला तो क्या, करेला ऊपर से नीम है कि नहीं है? आप इस किताब को पढ़िएगा, 165 रुपये की हिंदी में किताब है। और मैंने कभी सोचा नहीं था ये 12,000 की किताब बिक गई है। ठीक है, 12,000 हिंदी बिक गई, गुजराती वर्जन, इंग्लिश वर्जन। आप पढ़ेंगे ना तो आपको ये सोने नहीं देगा, क्या करने कर देगा, आपकी नींद हराम कर देगा। और ये आपको तब तक नींद नहीं आने देगा जब तक आप मेरे जैसे कुछ कर नहीं जाओगे। इसके अंदर वो ताकत है किताब के। ये आपको तब तक नहीं सोने देगा। इसमें ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे काम हैं क्या, कि आपकी नींद छीन लेगा। और आपको तब तक नींद नहीं आएगी जब तक आपकी अपने क्षेत्र में जो भी आपका मनसा होगा, मेरे जैसे कुछ कर गुजर नहीं जाओगे। तो मेरी आप सभी लोगों की शुभकामनाएं हैं। एजुकेशन ही वो रास्ता है जो ऊंचाई पे ले जाएगा। ये सस्ता है। अब कहेंगे हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कैसे पढ़ लें, तो अम्बेडकर जी कैसे पढ़ लिए? आप जितने बड़े आदमी हुए हैं, अगर किसी की भी जीवनी पढ़ो, चाहे सरदार पटेल की, चाहे अम्बेडकर की, यार ऐसे कितने भी, जितने भी बड़े लोग हुए हैं, जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है वो कभी मजबूत नहीं हुआ है। अगर आपको आगे जाना है तो संघर्ष करना है। एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी। आप मेरे बारे में भी पढ़िएगा, आप लिखिए डॉक्टर हीरालाल आईएएस, अभी देखिए कितना चीजें मिलेंगी। और आप इस किताब को पढ़िए। मैं आपको इंस्पायर करने आया था। क्या? मैं आप लोगों को बेरोजगार नहीं देखना चाहता हूं। मेरा ये मुहिम है। मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, मैं सबको यही समझाता हूं, पढ़ाई नौकरी के लिए मत करो। नौकरी पाने का जमाना चला गया। मेरा जमाना था कि हम पढ़ते हैं तो नौकरी के लिए पढ़ते हैं, वो जमाना चला गया। नौकरी, बुढ़ा हो गया, नौकरी की एज खत्म हो गई। हम अब रोजगार के जमाने में आ गए हैं। पढ़ाई नौकरी के लिए करो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन नौकरी के लिए भी करो, साथ में रोजगार के लिए भी करो। रोजगार का मुद्दा क्या होना चाहिए? जो आपकी रुचि हो, जो आपका पैशन हो। थैंक यू, धन्यवाद। और मैं ये किताब आपके डीन साहब को ये गिफ्ट करना चाहता हूं, दूं कि ना दूं? नहीं, आप लोग कहेंगे तभी दूंगा। अच्छा, फ्री में दूं या पैसा लेके दूं? थैंक यू सर। एंड सीरियसली इतनी अच्छी स्पीच के बाद आई थिंक जोरदार तालियां बनती हैं। थैंक यू सो मच सर। और इन द मीन टाइम आई वुड रिक्वेस्ट सर प्लीज। देखिए, मैंने इनको भी भगा दिया। देखिए, मैं एक प्रोजेक्ट चलाता हूं, मेरा सोशल पैशन है। मैं बहुत परेशान आत्मा हूं। क्या हूं? हाँ, मतलब मैंने बीटेक किया, एमटेक किया, ठीक, एनटीपीसी में नौकरी किया, फिर अमेरिका चला गया 1 साल पढ़ने। मैं अमेरिका में बताऊंगा तो हैरत, मैं कभी अपनी ज़िंदगी में चाय नहीं बनाया था। वहाँ झाड़ू लगाता था, खाना बनाता था, सब करता था। अमेरिका में कोई गुंडई नहीं है कि नौकर हैं, आईएएस साहेब हो। वहाँ सबकी औकात बराबर है। एमपीए करके आया, पीएचडी किया, और अब क्या कर रहा हूँ? पढ़ाई कर रहा हूँ। तो ये मेरा पढ़ाई का, नौकरी भी करता हूँ। आप जैसे लोगों को हंसाता भी हूँ और इंस्पायर करता हूँ। मैं एक प्रोजेक्ट चलाता हूँ मॉडल गांव का, कि कैसे, आप लोग डालिए मॉडल गांव, MOEDL मॉडल गांव डालिए, तो ये प्रोजेक्ट को पढ़िएगा। और आप मेरी किताब पढ़िए और ये मॉडल गांव प्रोजेक्ट पढ़िए और मेरे पास आइए, ठीक है? अब कहो कैसे आएंगे आपके पास? आपने तो ना फोन नंबर दिया, ना बताया कहाँ रहते हो। कैसे मिल जाएगा? गूगल। अभी पूछो, अभी आधा घंटे मेरे घर पे पहुंचा देगा।
आइए तो मैं आपको चाय पिलाऊंगा और आपसे मिलूंगा और आपको कुछ और अंदर की बातें बताऊंगा। सारी बात यहाँ नहीं बताई जा सकती, अंदर वाली यहाँ नहीं बता सकता माइक से। धन्यवाद। I would request respected Sushil sir to please present a bouquet to respected Hiralal sir. Memento. And I think मैं खुद बातों में इतना ज्यादा खो गया था, बुके और मोमेंटो में डिफरेंस भूल गया था। एग्जैक्टली शांक, स्पीच के पहले ही बोला गया था कि इट्स अ मोटिवेशनल टॉक एंड such a great speech, sir. Thank you so much for your contribution today and wonderful words you have shared with us. सर आई वुड रिक्वेस्ट यू, आज अखिल ज्योत के मौके पे आप सर हमारे चेयरमैन सर की फोटो पे प्लीज पुष्प अर्पित करें। तो पहले कराना चाहिए था। थैंक यू सर। जोरदार तालियां हो जाएं एक बार सर के लिए।